اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے برکتی کے بہت سارے اسباب گنائے ہیں. میں آپ کے سامنے ان میں سے چند آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں. قرآن سنت اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو بے برکتی کا سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہو جانا ہے. میرا اور آپ کا رشتہ، میرا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کمزور ہو جائے تو پھر ہم اور آپ کی زندگی سے برکت کا رخصت ہونا بھی طے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور دلوں کا یہ اطمینان برکت کے احساس سے جڑا ہوا ہے کہ جب تک آدمی کی زندگی میں برکت رہتی ہے، خیر رہتا ہے، آدمی کی زندگی میں سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے. اور اللہ نے کہا الا بذکر اللہ، لوگوں سنو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں بہت سارا خیر کمانا چاہتے ہیں، اور جو کمانے کے اسباب ہیں وہ اسباب بھی اختیار کماتے ہیں. ہمیں مال چاہیے، مال کمانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں. ہمیں نام چاہیے، نام کمانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں. ہمیں دنیا کی کوئی بھی نعمت چاہیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. لیکن ہم اور آپ سبب اختیار کرتے ہیں، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. سبب اختیار کرتے ہیں لیکن ان اسباب کو کامیابی سے ہم کنار کرنے والے رب کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے. اسباب کو دینے والا اور اسباب کو کامیاب کرنے والا وہی ہے. ہمارا اور آپ کا رشتہ اگر مسبب الاسباب سے نہ ہو، مسبب الاسباب سے میرا اور آپ کا رشتہ کمزور پڑ جائے اور ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، زندگی بھر بھاگ دوڑ ہی رہے گی. یا تو کچھ نہیں ملے گا، یا ملے گا تو بہت تھوڑا ملے گا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج دیکھو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی محنت کم نہیں، بہت محنت وہ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی محنت کامیاب نہیں ہو پاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہے، اللہ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کمزور ہے. کتنے کاروباری ہیں صبح سے لے کے شام تک دکان پہ جم کے محنت کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں بہت زیادہ ترقی نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بہت سارے اسباب کے ساتھ ایک سبب کہ آپ نے سبب تو اختیار کیا لیکن مسبب الاسباب کو بھول گیا. آپ نے یہ سمجھا آپ محنت کریں گے کما لیں گے، آپ نے سمجھا محنت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی اسباب میں اللہ نے رکھی نہیں ہے، اسباب تو اللہ نے اسباب رکھے ہیں. کامیابی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو آپ کو دے، اللہ چاہے تو آپ کو نہ دے. اور آپ سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب کی خاطر مسبب الاسباب کو چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر اسباب کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو اسباب کی خاطر چھوڑ کر ہم خیر تلاش کریں، اپنی زندگی میں برکت لانا چاہیں، اپنی زندگی میں خیر کو باقی رکھنا چاہیں، کہاں سے باقی رہے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اسباب ہیں، اصل میں مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف سبب کو اختیار کرنے والے لوگ آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ پہلا سبب ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کا. ہماری زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر پل یاد رکھنے کا معاملہ نہیں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کا حصہ نہیں، ہماری زندگی میں تعلق باللہ کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں سے کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا ہے. تو پھر بتاؤ میری اور آپ کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا ذکر کیا کرو، برکت زندگی میں رہے گی. قرآن کثرت سے پڑھا کرو، برکت زندگی میں رہا کرے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کیا کرو، فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کا بھی اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں برکت رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی شکلیں، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مظاہر ہیں، اور در حقیقت یہ میری اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کا بہت بڑا سبب ہے. دوسرا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں بے برکتی کیوں میری اور آپ کی زندگی میں. بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے ہمارے اور آپ کے گناہ، ہماری اور آپ کی سرکشی، ہماری اور آپ کی نافرمانیاں. یاد رکھو میرے بھائیوں، جتنی نحوست میری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اپنے گناہوں کی ہے اس قدر زیادہ نحوست کسی اور چیز کی نہیں. مستدرک حاکم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کو رزق سے اس کے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. آپ کے حق میں اللہ نے ایک رزق لکھا ہے، اللہ نے آپ کے حق میں کوئی چیز لکھی ہے، کوئی نعمت لکھی، کوئی خیر لکھا ہے.
फिर आप कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला गुनाह की सजा यूं भी देता है, जो खैर आपके नसीब में मुकद्दर में लिखा था, जो रिज्क आपके मुकद्दर में लिखा था, अल्लाह ताला उसे वापस ले लेता है। मेरी और आपकी जिंदगी में बेबरकती की वजह मेरे और आपके गुनाह हैं, मेरे और आपके गुनाह है जिसकी वजह से मेरी और आपकी जिंदगी में बेबरकती है। और हम और आप बरकत पाना चाहते हैं, बरकत हासिल करना चाहते हैं, करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि हम और आप अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी गलतियों से बाज आए। गुनाहों को रखते हुए बरकत की तमन्ना करना एक आरज़ू रह जाएगी, लेकिन कभी हमारी और आपकी जिंदगी में बरकत लौट कर नहीं आएगी। कुरान और सुन्नत मुझको और आपको बताते हैं कि गुनाह जो है ये इंसान की जिंदगी में बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है। तीसरा सबब मैं आपको बताता हूं, मेरे और आपकी जिंदगी में बेबरकती क्यों आती है? सूद की वजह से आती है। सूदी मामलात से अगर मेरा कोई आपका ताल्लुक है, इंटरेस्ट है, सूद है, लेते हैं, देते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सूद का लेना बुरा है, देने में कोई हरज नहीं, दोनों बराबर है इस्लाम की नजर में। लेने वाला, देने वाला, सूद के मामले से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने वाला सब बराबर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़ालहुम सवा, ये सब के सब बराबर हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया। मेरे भाइयों याद रखो, मेरी और आपकी जिंदगी में बेबरकती का एक बहुत बड़ा सबब है सूदी मामलात से मेरे और आपके ताल्लुकात। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पे फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है। अहले इल्म ने शरह करते हुए, तफसीर करते हुए लिखा कि इस आयत का सीधा मतलब यह है कि सूद जहां जाता है, जिसके मामले में जाता है, वो वहां से बरकत को मिटा देता है, वहां से बरकत को खत्म कर देता है। आज आप देखो हम में से कितनों की जिंदगी सूद से पाक है, सूदी मामले से हम कितने दूर हैं, और फिर भी हम कहते हैं मेरी जिंदगी में बरकत नहीं। तो कैसे आएगी? ये अल्लाह ताला का कलाम है, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सूद की वजह से बरकत खत्म होती है। सूद भी रखें, बरकत भी रहे, दोनों साथ नहीं चलते। हम चल सकते हैं, शायद हमने मान लिया मैं अल्लाह का बंदा भी हूं और सूद लेके अल्लाह से जंग भी कर रहा हूं, मैं शायद मान लो मेरे साथ दोनों चलते हैं। अल्लाह के पास दोनों नहीं चलते, या सूद रहेगा या बरकत रहेगी। बरकत चाहिए तो सूद छोड़ो, और सूद चाहिए तो फिर बरकत की तमन्ना मत रखो जिंदगी में। सूद जो है ये बेबरकती का सबब है। और इसी आयत में बेबरकती का एक और सबब भी बताया, वो मेरी और आपकी जिंदगी में हमें और आपको देखना चाहिए। वो क्या है? आदमी जब अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में बखीली करने लगे, अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने से रोक हो जाए, अल्लाह की राह में माल देने से में बखीली करे, तो फिर अल्लाह ताला बरकत को रोक लेता है। अल्लाह ने फरमाया वहुर्बिस्सदक़ात, अल्लाह ताला सदकात को बढ़ावा देता है, सदकात को अल्लाह ताला बढ़ावा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना दो फरिश्ते आसमान से आवाज देते हैं, आसमान से उतर कर आते, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, जो बंदा तेरी राह में खर्च करता है उसे वापस लौटा दे, उसे पलटा कर दे। अल्लाह ताला ये दुआ करते हैं फरिश्ते। मेरे भाइयों, बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह है अल्लाह की राह में खर्च करने में बखीली करना, अपना हाथ तंग कर लेना, अपना दिल छोटा कर लेना, अपनी जेब बंद कर लेना, अपनी तिजोरियों को लॉक कर लेना। अल्लाह के बंदे मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, मुस्तहिकीन हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ताला के दीन के काम हैं। इन कामों में खर्च करने के बजाय अपने हाथ को रोक लेना, यह भी हमारी और आपकी जिंदगी में बेबरकती की बहुत बड़ी वजह है। आपको मालूम है, एक साहबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरा एक भाई है, और वो भाई ऐसा है कि वो आपकी मजलिस में बैठा रहता है, वो आपकी मजलिस में बैठा रहता है और मुझे जाके कमाना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आदमी से कहा है कि आदमी खुद कमाए, खुद खाए, खुद कफील रहे। आदमी को ऐसा होना चाहिए कि खुद खाकर इस काबिल हो कि दो लोगों को दे सके। ये तालीम अल्लाह के नबी ने दूसरे मौके पे दी है। बैठकर खाने को अल्लाह के नबी ने कोई अच्छी चीज नहीं करार दिया, लेकिन इस आदमी की तरबियत अल्लाह के नबी ने की, जो ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी ये आपकी मजलिस में बैठकर सीखता रहता है, दीन पढ़ता रहता है और मुझे जाके कमाना पड़ता है। अल्लाह के नबी ने कहा तुझे ये ख्याल है तू कमा रहा है, तुझे क्या पता कि अल्लाह उसकी वजह से तुझे रिस्क दे रहा होगा। मेरे भाइयों, ये गरीब, ये मिस्कीन, ये मोहताज, ये जरूरतमंद, ये दीन के नाम पर बहुत सारे अच्छे काम ये आप समझते हैं आप चला रहे हैं। अल्लाह के नबी की हदीस बताती है क्या पता हो सकता है उनकी वजह से अल्लाह आपका रिस्क चला रहा हो,
जिनकी वजह से अल्लाह ताला आपको रिस्क दे रहा हो। बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि खैर के कामों में, अच्छे कामों में, अल्लाह ताला की राह में, जरूरतमंदों की मदद करने की राह में लोग खर्च करने से रुक जाते हैं। यह भी बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबरकती की एक और वजह भी बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया अल-बय्यानी बिल-खियार मा लम यतफर्रका। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों को इख्तियार है कि जब तक वो जुदा ना हो जाए तब तक व्यापार चाहे तो कैंसिल कर ले। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन सदक़ा व बय्यना। लेन देन का जो मामला होता है ना, उसमें एक तो सच्चाई होनी चाहिए, दूसरी चीज है खुलापन होना चाहिए। एकदम खोल के बात करो, खुला रखो एकदम। जो है, जो नहीं है। लेना होगा तो लेगा, नहीं होना तो नहीं लेगा। आप जो है कोशिश करें कि आपकी तरफ से बात सच्ची होनी चाहिए, और दूसरी चीज मामला खुला होना चाहिए। जगह छुपाकर, कोई ऐब छुपाकर ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन सदक़ा व बय्यना, अगर ये दोनों सच बोले और मामले को खुला रखेंगे, बुरिक लहुमा फी बैइहिमा, उन दोनों की तिजारत में अल्लाह ताला बरकत देगा। खरीदने वाला खरीद कर भी बरकत में रहेगा, बेचने वाला बेच कर भी बरकत में रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इन कज़बा व कतमा, अगर दोनों झूठ बोले और छुपाएं कुछ ऐब को, किसी कमी को, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुहिक़त बरकतु बैइहिमा, दोनों की तिजारत से बरकत उठा ली जाती है। खरीदने वाला खरीद कर भी शिकायत में रहता है और बेचने वाला बेच कर भी शिकायत में रहता है। आज आप देखो कितने ऐसे मामलात हैं, लेन देन हो जाता है, होने के बाद खरीदार को शिकायत, मेरे साथ धोखा हुआ, और बेचने वाला कहता है मुझे लगता है मैं सारा कम में मैंने बेच दिया। ये बेबरकती की अलामत है। बरकत यह है कि बेचने वाला बेचकर खुश हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुनासिब कीमत मिली, और लेने वाला खुश हो कि जो मैंने लिया है मेरे साथ बहुत अच्छा माल, बहुत अच्छी चीज मुझे मिली है। यह बरकत का मेयार है जो अल्लाह के नबी ने बताया। बेबरकती क्यों आती है? अल्लाह के नबी ने सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में एक और सबब बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हलिफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हलिफ मनफक़तुन लिस्सिलह व ममहक़तुन लिलबरका। कुछ लोग माल को बेचने के लिए झूठी कस्में खाते हैं, मामले को पूरा करने के लिए झूठी कस्में खाते हैं, मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए झूठी कस्में खाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ऐसी कसम खाई जाती है सामान तो बिक जाता है, कसम के बल पर, कसम के जोर पर सामान तो निकल जाता है, ममहक़तुन लिलबरका, लेकिन तुम्हारी कसम तुम्हारे इस कारोबार से बरकत को खत्म कर देती है, मिटा देती है। अल्लाह के नबी ने यह सबब बताया कि मेरी और आपकी जिंदगी में बेबरकती इस वजह से भी आती है।